Welcome students. Now we are doing maths class 10 chapter 3rd pair of linear equation in two variable. So we will start with the name of the chapter which tells pair of linear equation in two variable. So what is this? Let us start with linear equation. What is a linear equation? So a linear equation is an equation whose degree is 1. सो लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी 1. एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मींस ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी और वेरिएबल 2 होंगी. फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. देयर आर टू वेरिएबल x एंड y whose highest power is 1. So it is a linear equation in two variable. Next, chapter name is pair of linear equation in two variable. What is a pair? Pair means जोड़ा. जब आप दो इक्वेशन एक साथ लोगे that is called the pair of linear equation in two variable. Means two linear equation in two variable taken together or simultaneously. जब आप दो लीनियर इक्वेशन एक साथ लोगे that is called the pair of linear equation. For example, x plus y is equals to 10 and x minus y is equals to 2. This is equation 1 and this is equation 2. This is called pair of linear equation in two variable. Close कर दें. In this video, we will discuss the representation of linear equation in two variable. कि linear equation की representation हम कैसे कर सकते हैं? As we have done in class 9, that linear equation in two variable represent a straight line. Means the graph of linear equation is always a straight line. अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे लीनियर इक्वेशन का दैट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन. वी विल डिस्कस इट विद एन एग्जांपल. x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. इफ x इज इक्वल्स टू 0, अगर x 0 होगा तो आपका y क्या हो जाएगा 10. इफ x इज इक्वल्स टू 4, देन आपका y क्या हो जाएगा 4 वहां जाकर क्या हो जाएगा माइनस का. देन वी विल हैव y इज इक्वल्स टू 6. नाउ इफ x इज इक्वल्स टू 10, देन 10 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. 10 वहां जाकर क्या हो जाएगा माइनस का एंड y इज इक्वल्स टू 0. सो फॉर प्लॉटिंग द ग्राफ हम एक यहाँ पर एक डाटा लेते हैं जो हमारे पास आया है दैट इज x एंड y. जब आपने x को 0 लिया तो y क्या आया है 10. जब आपने x को 4 लिया तो y क्या आया है 6. जब आपने x को 10 लिया तो y क्या आया है 0. नाउ वी विल प्लॉट द ग्राफ. This is x axis, this is y axis and this is origin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. -1 -2 -1 and -2. When x is 0, y is 10. When x is 0, y is 10. So this is the point 0 and 10. When x is 4, y is 6. जब x 4 है, y क्या है 6. So this is the point 4 and 6. When x is 10, y is 0. जब x 10 है, y क्या है 0. So this is 10 and 0. When we will join these points, it will give us a straight line. Therefore, linear equation in two variable always represent a straight line. Hello students, in this video we will discuss the solution of pair of linear
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ अर्लियर वी हैव डन कि जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और हमने क्या पढ़ा है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है उसके जो सोल्यूशन होते हैं वो कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल विच वी हैव डन x plus y is equals to 10. There are many values which will satisfy these equation like 0 plus 10 equals to 10, 5 plus 5 is equals to 10, 9 plus 1 is equals to 10. That means there are many values which will satisfy only this equation, that is linear equation in two variable. Now comes pair of linear equation in two variable. जो pair of linear equation in two variable है उसका क्या solution होगा, कैसा solution होगा, so it will depend upon the equation. Now we have done कि जो linear equation का जो ग्राफ होता है वो straight line होता है, but हमारे पास pair of linear equation है, that means we have two equation. अगर हमारे पास two equation है तो हमारे पास two straight lines भी होंगी, बिकॉज क्योंकि हर एक लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हमारे पास दो इक्वेशन है x plus y is equals to 10 and x minus y is equals to 2, this represent a straight line, this also represent a straight line, है कि नहीं, कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, दोनों ही स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब क्या पॉसिबिलिटी है कि जब हम इन दोनों लाइंस को प्लेन में ड्रॉ करते हैं, हो सकता है ये लाइंस क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो सकता है कि ये दोनों लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग हो, या फिर हो सकता है ये दोनों लाइंस हो वो कैसी लाइन हो, पैरेलल लाइंस हो, या फिर हो सकता है लाइन इंटरसेक्टिंग हो, या फिर हो सकता है लाइंस पैरेलल, या फिर हो सकता है जो लाइंस है वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाए, दैट इज कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट का मतलब होता है ओवरलैप करना, कि एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। सो हो सकता है लाइन इंटरसेक्टिंग हो, पैरेलल हो, या फिर कोइंसिडेंट हो। जब लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उनके बीच में कितना पॉइंट कॉमन है, 1। तो जब भी दो लाइंस अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो उनका जो सोल्यूशन होगा वो कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि उनके बीच में एक ही पॉइंट कॉमन है, तो सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन। जब लाइन पैरेलल होंगी, इज देयर एनी पॉइंट कि जो कॉमन हो इनके बीच में, या फिर कभी ये मीट करेंगी, नो, तो सोल्यूशन कैसा होगा, नो सोल्यूशन। मतलब x और y की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है एक साथ। कोइंसिडेंट लाइन, देयर आर मेनी पॉइंट्स विच आर कॉमन इन बिटवीन दिस टू लाइंस, तो सोल्यूशन कैसा होगा, मैनी सोल्यूशन, क्योंकि बहुत सारी x और y की वैल्यूज होगी जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती हैं, तो सोल्यूशन कैसा होगा, मैनी सोल्यूशन। सो व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द टू इक्वेशन, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वी विल गेट द टू लाइन। सो या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, या पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंट होंगी। इंटरसेक्टिंग होंगी तो सोल्यूशन इज यूनिक, पैरेलल होंगी तो सोल्यूशन इज नो सोल्यूशन, देयर विल नॉट बी एनी सोल्यूशन। अगर कोइंसिडेंट होंगी तो सोल्यूशन कैसा होगा, मैनी सोल्यूशन। तो इट डिपेंड्स अपॉन द लाइन, कि जो लाइन है वो किस तरह की है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर अब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, देयर आर 4 मेथड, 1 इज ग्राफिकल मेथड, second is substitution method, and third is elimination method, and 4 is cross multiplication method. We will discuss all these method in this chapter one by one. This method we will discuss in exercise 3.1. Substitution method we will discuss in exercise 3.3. Elimination method we will discuss in exercise 3.4, and cross multiplication method we will discuss in exercise 3.5.